رکھی۔ اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خدا ان پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا ان پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ پریز۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے کھول دیے ہیں۔ سوکھنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے طمار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ آئیں سب سر خدا ان کی حضوری میں جھک جائیں، اپنے مسیح سے باتیں کرنا شروع کریں۔ وہ یہاں پر موجود ہے، وہ آپ سے باتیں کرنے کے لیے اتر آیا ہے۔ اپنے مسیح سے، اپنے خدا سے باتیں کرنا شروع کریں۔ ہاں، اس کے کان ہماری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ وقت ہے اسے مانگے، کھٹکھٹائیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ پریز۔ خداوندو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان، کہ اس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان۔ خداوند نو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان، کہ اس تو میری ہے امید، او میری چٹان۔ او میری جان دا قلعہ ہے، او میری جان دا قلعہ ہے، نجات پناہ گاہ، نجات پناہ گاہ۔ سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی چلاں گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی چلاں گا۔ خداوند نو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان۔ خدا تی میری ہے نجات، خدا تی میری ہے نجات، ہے اسی میری شان، ہے اسی میری شان۔ خداوند میری پناہ ہے، زور میرے دی چٹان۔ خداوند میری پناہ ہے، زور میرے دی چٹان۔ خداوند نو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان۔ آسو دیو تیرا کو سب، آسو دیو تیرا کو سب، اے امتو صدا، اے امتو صدا۔ جھکاؤ دے اگے دل، جھکاؤ دے
اگے دل کے او ہے خدا خدا وندنو اڈیگ دی رہے آرام نال میری جان کہ اس تو میری ہے امید او میری ہے چٹان او میری ہے چٹان او میری ہے چٹان وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچا برج ہے مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی پریز اپنے مسیح کا شکر کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری چٹان ہے وہ ہمارا قلعہ ہے ہاں وہ اپنے پروں میں ہمیں چھپا لیتا ہے تاکہ ہمیں دنیا کا کوئی خوف کوئی ڈر کوئی مصیبت کوئی وبا ہمیں چھونے بھی نہ پائے ہاں وہ ہمیں اس نے ہر بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے اس کا قادر ہاتھ ہمارے اوپر ہے خدا ان کا شکر ادا کرنا شروع کریں پریز قدوس قدوس رب الافواج زمین و آسمان کے خالق و مالک ہم تو شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہم تو شکر گزار ہیں اس وقت خداوند پرے میٹنگ کے لیے ہیلنگ میٹنگ کے لیے خداوند تجھ سے خداوند دعا کرتے ہیں خداوند ہاں خداوند جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور خداوند جتنے آن لائن موجود ہیں ان سب کے لیے خداوند تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں ہر ایک کے دل کی مرادوں کو خداوند تو سن لینا ہر ایک کی مصیبت پہ کان لگانا ہاں خداوند تو خداوند انسان کو دکھ سے نکال دیتا ہے خداوند تیرا شکر ہو خداوند تو مرہم پٹی کر دیتا ہے خداوند ہاں خداوند تو ہمارا بادشاہ ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو قہر کرنے میں دھیما ہے شفقت میں غنی ہے تیرا شکر ہو خداوند اس وقت سسٹر نرگس کی ماما کو خداوند خاص طور پر تیری حضور میں رکھتے ہیں خداوند ہاں خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا چھو خداوند شفا بخش خداوند ہاں خداوند تو ہی ہے خداوند جو دل کی مرہم پٹی کرتا ہے ہاں خداوند تو زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے خداوند ہاں خداوند ان کے آپریشن کو تو نے کامیاب کیا ہے خداوند جتنی باقی کمزوری ہے خداوند تو ہی ہے خداوند جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے خداوند اپنی بندی کو چھو اور ہیل کر خداوند اور خاندان کو اور مضبوطی دے خداوند تاکہ تجھ میں مضبوط رہیں اور تجھ میں قائم رہیں خداوند تیرا شکر اسی طرح کلیسیا میں جو بھی بیمار ہیں خداوند ان کے لیے برکت کی اور ہیلنگ کی دعا چاہتے ہیں خداوند اس وقت خداوند میٹنگ کے شروع سے لے کے آخر تک تمہاری مدد کرنا ہمارا گیت گانا خداوند تیری حضوری میں باعث برکت ٹھہرے تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین آمین خداوند کی حضوری میں زبور 145 گائیں گے نہایت ہے رحیم خدا مہربان مہربان نہایت ہے رحیم خدا مہربان 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 او دھیما غصے میں صدا مہربان 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 بادشاہی بھی مہربان 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 بزرگی دست تیرے
बादशाही तेरी वीर, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, हमेशा कर रहेगी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सब लोग कानूए दस्ते जा राजबीर यादी करेगा, सब करते वादा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, नहायत रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ धीमा गुस्से में सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद खुदाई कदूस के नाम को मिले। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा बेहद मेहरबान है। वो मेहरबानी करने में कसरत से हम लोगों के ऊपर मेहरबानी करता है। वो कभी भी अपनी मेहरबानी को हमसे बाज नहीं रखता है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। उसकी बादशाही हमेशा तिकर कायम रहने वाली है। उसकी बादशाही का आखिर नहीं है। हालेलुया। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। उस बर्रे का शुक्र अदा करें जो हमारे लिए मसलूब हुआ है। उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें रिहाई बख्शी है। आए खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत 77 गाएंगे। तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। तारीफ़ो खुदा के बरे की, 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 बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। इज्जत व जलाल कुदरत व कमाल, इज्जत व जलाल कुदरत व कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बरे की, करते हैं इबादत बरे की, बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सनाओ सनाओ बरे की, सनाओ सनाओ बरे की, बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, सारे गाँव सना बरे की, सारे गाँव सना बरे की, बरे की, तारीफ़ो खुदा के 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 बरे की। हालेलुया। यीशु नासरी ही तारीफ और सिताइश के लायक खुदावंद है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज की शाम हमारे मुंह में अपनी रागनी, अपनी हमद, अपनी सिताइश को भर दिया है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें कि हम अपने होंठों को खोलकर अपने खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। उससे हमारे हालातों को बदल दिया है, उससे हमें कुव्वत गोयाई बख्शी है, उसने हमें अपना कलाम बख्शा है ताकि
ताकि हम उसके कलाम की पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं और उसके कलाम ने हमारे हालात बदल दिए हैं। मेरे अजीजों, हमारे यीशु ने हमारे हालात बदल दिए हैं। वो राह, हक और ज़िंदगी है। कोई उसके वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता है। आपके हालात बदल गए तो अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें और बड़े ईमान से कहिए, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। उसको छूने से हालात बदल जाते हैं, उसको पुकारने से हालात बदल जाते हैं। आए बड़े ईमान के साथ क्वायर के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से शायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, हो यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़री को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़री को यीशु ने जिंदा किया। मौजज़ात भी हो जाते हैं, मौजज़ात भी हो जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, ओ कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। मेरी खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, मेरी खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अबदी शिफा, ओ लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अबदी शिफा। जीवन को भर दे यीशु रूह के पलों, जीवन को भर दे यीशु रूह के पलों से दुआ। बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, मौजज़ात भी हो जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हो यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से,
खुदावंद का शुक्र अदा करें। मेरे खुदावंद ने कल भी मौजज़ात किए हैं, वो आज भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की शाम आपकी जो भी बीमारी अपने खुदावंद के आगे रख दीजिए, अपने खुदावंद को छू लीजिए, उसे कहिए ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो अपना रहम, अपने करम की नज़र हम पर करता है। उसके छूने से हम शिफा पा जाते हैं, उसके देखने से हम शिफा पा जाते हैं, उसके पुकारने से हम अपने सारे बंधनों से, अपनी तकलीफ़ों बीमारियों से रिहाई पा जाते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावंद को पुकारना शुरू करें। कहें खुदावंद तू ही है जो मुझे हर तरह की मुश्किलों मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता है। आज की शाम अपने खुदावंद के हुजूर अपने दिलों को उंडेल दें, अपने दिलों को खाली कर दे अपने खुदावंद के हुजूरी में। अपने होंठों को खूब खोलिए, उसका वादा है तो अपने मुंह को खोल तो मैं उसे खूब भर दूंगा। अपने खुदावंद को कहें कि जो भी मेरे दिल की मुराद है तो अपने नाम के वसीला से उसे पूरा कर दे। आज की शाम हर तरह के जुए बंधन टूटने को है, खुदावंद का जलाल जाहिर होने को है। अपने खुदावंद को पुकारिए। हालेलुया। उसने हमें वक्त दिया है, उसे हमें मौका दिया है ताकि हम अपने खुदावंद के साथ वक्त गुजार सके, उससे बातचीत कर सके, उसे पुकारें। हालेलुया। हम तमाम बीमारों के लिए खुदावंद की हुजूरी में दुआ करेंगे, खास तौर पर साइमा रोबन के लिए खुदावंद की हुजूरी में फरियाद करेंगे। खुदावंद उसकी सारी मुश्किल को दूर करे। खुदावंद अपने कभी हाथ को उस पर बढ़ा दे, अपनी शिफा को उसके लिए जारी कर दे। कलीसिया के खानदानों के अंदर कोई भी बीमार है तो खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए और शिफा दे। और मेडिकल स्टाफ के लिए भी खुदावंद की हुजूरी में हम दुआ करेंगे। और मैं सिस्टर सलमा जाहिद को सामने बुलाऊंगी कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। जाती रहे, यीशु नाम से हर तरह के बंधन जुए टूट जाए खुदावंद। तेरे लोग तुझ में सरगर्म हो जाए खुदावंद। तेरे लोग तुझ में बड़े कादरे मुतले खुदा, तो अपने लोगों के ऊपर बड़ा रहम कर खुदावंद। खुदा इसी हम अच्छी कलीसिया के लिए शुक्रगुजार हैं, अच्छे खादमों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खादमा के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद, और भाई के लिए शुक्रगुजार हैं, क्वायर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा। तूने हमें अच्छी कलीसिया के अंदर रखा है खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हम पर बड़ा रहम किया है खुदावंद, हम तेरी तारीफ़ करते हैं। और इस वक्त खुदावंद सैमा रोबन को तेरी हुजूरी में रखते हैं। कुदूस बाप, हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह की बीमारी यीशु के पाक नाम से जाती रहे। हम नहीं जानते बीमारियां कहाँ से आती, हम तो इतना जानते जहाँ तेरा नाम लिया जाता है वहाँ बीमारी कमज़ोरी ठहर नहीं सकती। हम बड़े के पाक लोग उसके ऊपर लगाते हैं कादर मुतले खुदा। अपनी बेटी को छू और शिफा दे और उठा खड़ा कर खुदा खुदा ऐसी। और इसी तरह बहन नरगिस साले की मामा के लिए खुदा हम तेरी शिफा को मांगते हैं। अपनी बंदी को ज़रावर कर खुदा, अपनी बंदी को तसल्ली ता कर खुदा, क्योंकि तसल्ली का सल चश्मा तू ही है कादर मुतले खुदा। अपनी बंदी पे बड़ा रहम कर खुदा ऐसी। उस पूरे ख़ानदान को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदों के खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और कुदूस बाप इस वक्त जो बड़ी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है खुदावंद, यीशु के नाम से ये वबा जाती रहे। अय बाप तो अपने लोगों पर रहम कर खुदावंद। हम अपनी गलतियों कोताहियों का इकरार करते हैं खुदावंद जो हमसे सरजद हुई हैं खुदावंद, हम उनको दूर करते हैं कुदूस बाप। हम तुझ में बढ़ना चाहते, तुझ में ज़ोरावर होना चाहते हैं खुदावंदों के खुदा। तू शिफा अता कर, क्योंकि तू शाफी है, तू शिफा का मंबा है।
हम पूरे मेडिकल स्टाफ को तेरे हाथों में देते हैं, नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और तमाम वर्कर्स के लिए खुदावंद, जो भी हेल्थ के जितने भी मुलाजम हैं सब पर खुदावंद हम तेरे हाथ को मांगते हैं। हर तरह का वायरस, हर तरह की वबा तेरे लोगों से लैदा रहे खुदावंद, और जो लोग इस वबा में मुब्तला हैं उनके लिए खुदावंद तुझसे शिफा को मांग लेते हैं, ज़िंदगी को मांग लेते हैं खुदावंद, उनको उठा खड़ा कर। खुदूस बाप तू रहम कर, क्योंकि तू रहीम खुदा है, तू रहम से भरा हुआ खुदा है। हाँ खुदावंदों के खुदा, हर एक की आंखें तेरी तरफ लगी हैं, तू ही अपने हाथ को बढ़ाएगा और शिफा अता करेगा, क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कुदूस बाप, आज की इबादत को तेरे जलाली हाथों में देते हैं खुदावंद खुदाई सी। आज हमारा जमा होना तुझे पसंद आए, हमारा झुकना तुझे पसंद आए, हमारा प्रस्तश उठाना तुझे पसंद आए, और खुदावंदों के खुदा आज का हमारा जमा होना एक दूसरे के लिए बरकत, तसल्ली, शादमानी का बायस ठहरे। हम खाली आए और खाली ना जाए खुदावंद, हम तेरे पाक रूह से मामूर होना चाहते हैं खुदावंद, हम तेरे पाक रूह की मौजूदगी को इस जगह मांगते हैं। ऐ रूहुल कुद्दस तू हमारे दरमियान जुम्बश कर, ऐ रूहुल कुद्दस तू हमारे बातिन में होकर हमारी शिफायत कर। हम तेरा शुक्र करते हैं इस मददगार के लिए जो हमारे लिए भेजा गया है खुदावंद। सुज़ैना को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, तेरी बंदी का बोलना हम सब के लिए बरकत तसल्ली का बायस ठहरे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं अनीता के लिए और जाहिद के लिए खुदावंद, तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे जलाली हाथ को मांगते हैं खुदावंद, इनके हाथों को जंग करना सिखाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरा पाक इस जगह कसरत से जुम्बश करे, और जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं खुदा सब पर हम तेरी बरकत को मांगते हैं। हर एक आज की इबादत के वसीला से भरपूर बरकत पाए खुदावंद, और तुझ में जोरावर हो जाए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं और सारा जलाल हम तुझी को देते हैं। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए हम गाएंगे, यीशु नासरी दे दर उते आन वाला, और दे दर उते झूमर पान वाला, खुश रहेगा और सदा खुश रहेगा। मेरे चीज़ों, जब हम अपने खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं तो हम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि उसका रूह हमें खुश कर देता है। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की हजूरी में इस गीत को गाएंगे। यीशु नासरी दे दर उते आन वाला, ओदे दरी उते झूमर पाउन वाला, ओ यीशु नासरी दे दरी उते आउन वाला, ओदे दरी उते झूमर पाउन वाला, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। यीशु नासरी दे दरी उते आउन वाला, ओदे दरी उते झूमर पाउन वाला, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। ओदा नाम जिते रहो ते प्यार वसदा, ओते रोंदे आनू हसन दा वल दसदा, ओदा नाम जिते रहो ते प्यार वसदा, ओते रोंदे आनू हसन दा वल दसदा। सोने नासरी नू दिल च वसान आला, सोने नासरी नू दिल च वसान आला, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। यीशु नासरी दा पल्ला जिन्ने पढ़ लिया है, मेरा शान दे उते ओने कर लिया है। यीशु नासरी दा पल्ला जिन्ने पढ़ लिया है, मेरा शान दे उते ओने कर लिया है। ओदे कदमां च सीस नवान वाला, ओदे कदमां च सीस नवान वाला, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रहेगा, पैरां थल्ले तेरे आपे अपलीस रहेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रहेगा, पैरां थल्ले तेरे आपे अपलीस रहेगा। यीशु नासरी दा विरद ते आन वाला, यीशु नासरी दा विरद ते आन वाला, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। यीशु नासरी दे दर उते आन वाला, ओदे दर उते झूमर पाउन वाला, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश
रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के जिंदा कलाम को अपने लिए मांग लीजिए खुदावन से। उसका कलाम बरसने को है, जिंदा खुदावन हमसे हम कलाम होने को है, वो हमसे बोलने को है। हालेलुया। खुदावन खुदाई कदूस तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी तमजीद हो जिंदा खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सुनासरी आज इस खूबसूरत शाम के लिए जिसमें आए खुदावंद के खुदा तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद खुदाई कदूस। तूने अपने लोगों के अंदर अपने खुदावंद के खुदा गीत और रागनियों को रखा ये सुनासरी में तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तेरे दर पर हम झुके हैं खुदावंद के खुदावंद, तूने हमें खुश और शादमान कर दिया है। मेरा ईमान है खुदावंद के खुदावंद, आज जितनी जाने तेरी हजूरी में झुकी हैं हर एक ही है खुदावंद के खुदा तूने जरूरत पूरी की है। ये सुनासरी आसमानी बाप आज कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो खुदावंद खुदाई कदूस, हम सब है खुदावंद के खुदावंद तेरी हजूरी से झोलियां भर भर कर जाए और तेरे नाम को जलाल दे खुदावंद के खुदावंद। तेरा कलाम जब खुलता है खुदावंद खुदाई कदूस तो इब्लीस है खुदावंद थरथराता है, वो कांपता है। ये सुनासरी तेरा नाम जब लिया जाता है खुदावंद के खुदावंद, कोई गंदी तासीर आए खुदावंद के खुदावंद हमारे दरमियान रह नहीं सकती खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हमें अपना जिंदा कलाम बख्शा है। तेरा कलाम है खुदावंद के खुदावंद सच्चा है, बरहक है खुदावंद के खुदावंद। ऐ खुदावंद के खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये सुनासरी सच्चाई ने हमें आजाद किया है, तेरे कलाम ने हमें आजाद कर दिया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस दुनिया से अलग कर दिया है, तूने हमें अपनी पहचान बख्शी है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपना जिंदा कलाम हम तक पहुंचाया है। नबियों की मार्फत तरह बतरह हिस्सा ब हिस्सा तेरा कलाम जो हम तक पहुंचा है खुदावंद खुदा कदूस, हम हर रोज उसे नोश करें और तेरे नाम को जलाल दे। आज है खुदावंद के खुदा मिन्नत करती हूँ जब तेरा कलाम है खुदावंद के खुदा खुले तो ये सुनासरी हर तरह की कमी कमजोरी हमारे दिलों में से हमारी जिंदगियों से जाती रहे खुदावंद, और बड़े ईमान से हम आज है खुदावंद के खुदा तेरे कलाम को एक बार फिर अपनी जिंदगियों में वेलकम करने वाले बने। ये सुनासरी तेरा है खुदावंद के खुदावंद, तेरे बंदा के वसीला से तो हमसे बोलने को ये सुनासरी तेरे खादिम को तेरे हाथों में देते हैं। ये सुनासरी आज उनके वसीला से जब तो हमसे बोले खुदावंद के खुदावंद तो हर तरह का जुआ बंधन तेरे ये सुनासरी नाम के वसीला से टूट जाए खुदावंद, और हर एक है खुदावंद के खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए खुदावंद। तो है खुदावंद के खुदावंद हाजिर जमात की है खुदावंद, एक एक फर्द के साथ होना, ऑनलाइन जितने भी है खुदावंद इस मीटिंग में शरीक है ये सुनासरी एक एक के लिए खुदावंद के खुदा आज का कलाम भाई से बरकत हो खुदावंद। सबको एक खुदावंद छूना और बड़ी बरकत देना तेरे जिंदा जलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आए अजीजों खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदा के खादिम को हम जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। पास्टर इमरान मुफ्ती। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो और खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके हजूर में दुआ के लिए जमा हो सकें, अपनी दरख्वास्तों को मनाजातों को और शुक्रगुजारियों को भी खुदावंद के हजूर में पेश कर सकें। ये हमारे खुदावंद की रहमत है कि हम उसके पास आ सकते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि आओ उस फजल के तख्त के सामने दलेरी से जाएं और उस फजल को हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद कर सके। और यकीनन जब हम दुआ के लिए आते हैं तो दरअसल हम उसके तख्त के सामने हाजिर होते हैं और बादशाह अपना हाथ बढ़ाता है, हमारी फरियाद को सुनता है, और लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोल कर तमाम जानदारों को सैर करता है, आसूदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा मेरे साथ निकालिए दूसरी तवारीख उसका 15वां बाब उसकी पहली 7 आयात हम पढ़ेंगे। और खुदावंद की रूह उज़रिया बिन उहद पर नाज़िल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो
تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا، اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں، قوم قوم کے مقابلہ میں اور شہر شہر کے مقابلہ میں پس گئے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا۔ لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آسا بادشاہ یہودا کا بادشاہ تھا، اور اس کی بادشاہی میں بڑے اچھے کام ہوئے اور بڑا ریوائیول اسرائیل کے اندر آیا، پورے یہودا میں آیا، اور اس نے بڑی انسپائریشن دی، موٹیویشن دی۔ اور آسا بادشاہ کے پاس نبی آتا ہے جس کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، عزریہ کا۔ خدا کی روح عزریہ پر نازل ہوتی ہے، اور اسی اسپرٹ میں جب وہ آسا سے ملتا ہے اور کیا کہتا ہے، اسے کہا اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو۔ اور کیا خدا کا کلام اس نے سنایا، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ، اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ تو گویا یہ ہمیں بائبل کی ٹروتھ بھی ملتی ہے، خدا کبھی کسی کو ترک نہیں کرتا۔ جب آپ یسایہ کی کتاب میں پڑھیں تو لکھا ہے صہیون کہتی ہے کہ یہوہ نے مجھے ترک کر دیا۔ خدا کسی کو ترک نہیں کرتا، خدا کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کیا بائبل فرماتی ہے؟ تمہارے خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو۔ لکھا ہے کہ اگر تم اسے ترک کرو گے تو وہ تم کو ترک کرے گا، وہ نہیں ترک کرتا، تم ترک کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تمہیں ترک کرے گا۔ اس بائبل مقدس میں لکھا ہے تم بے وفا ہو جاؤ تو ہو جاؤ، لیکن وہ کیا ہے؟ وفادار ہے۔ اور داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، ہاں، اور اس کی وفاداری پشت دار پشت رہتی ہے۔ وہ وفادار خدا ہے، وہ کبھی ترک نہیں کرتا۔ تو گویا یہ غلط فہمی انسانوں کی زندگیوں سے ختم ہو جائے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، خدا نے مجھے ترک کر دیا، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں اسے اپنے قریب نہیں پاتا۔ دراصل بات یوں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، دراصل ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، تو اس لیے اس نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ آسا بادشاہ اور پورے یہودا کو جو خدا کا کلام ملا ہے اور ان کو ابھارا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا
और बगैर सिखाने वाले कहन और बगैर शरीयत के रहे हैं। तो इस तौर पर उन्होंने तरह किया हुआ है। वो तमाम चैनल्स जिसके जरिए से वो महफूज हो सकते हैं, जिससे बच सकते हैं, जिससे उनकी बरकत और जो है वो सलामती है, अमन है, चैन है, वो तो साबुर तरह किए है। बगैर सच्चे खुदा को, सच्चे खुदा के बगैर रह रहे हैं। वो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने अपने लिए बुत बनाए हुए, अपने अपने मबूद बनाए हुए थे, अपने अपने खुदा बनाए हुए थे जो सरासर झूठे और इंसान की दस्तकारी थी। और यूं जब सच्चे खुदा को यानी यहोवा को उन्होंने छोड़ा हुआ हो, उस पर अपना ईमान जो है वो ना रखा हुआ हो, उस दीन से अलहदा हो गए हों, तो वो क्यों कर ये कहें, ये दावा करें या फिर यूं कहें कि खुदावंद तूने मुझे तरक कर दिया। यशोع ने एक दफा बनी इसराइल को साफ कह दिया था, ऐ इसराइलियों, वो उनसे आखिरी खिताब कर रहा था कि तुम उन मबूदों के पीछे जाना चाहते हो जो जब तुम्हारे बाप दादा जिनको मानते रहे हैं तो उनको मान लो, तुम्हें आज़ादी है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं और मेरा घराना तो खुदावंद की क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आमीन। तुमने अपना चुनाव करना है तो कर लो, लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। तो गोया ये तो पहले बता दिया था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो सच्चे खुदा की प्रस्तुत करेंगे, हम गैर मबूदों के पास नहीं जाएंगे, हम जो है हरे दरख्तों के नीचे जाकर प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके लिए बखूर नहीं जलाएंगे, उनके मबूदों को सजदा नहीं करेंगे, दम दरूद नहीं करेंगे, तवीज़ धागे नहीं करेंगे, जादूगरियां नहीं करेंगे। तो गोया इसराइली ये सब कुछ कर रहे थे, सच्चे खुदा को छोड़ा हुआ था बड़ी मुद्दत से। और फिर बगैर सिखाने वाले काहिन जिन्होंने उनको तालीम देनी थी, जिन्होंने खुदा के करीब उनको लेकर आना था, जो शफात करने वाले थे, जो उनकी खातिर खुदा के हुजूर में जाते थे, जो उनको शरीयत सिखाते थे, आइन और अहकाम सिखाते थे कि किस तौर पर खुदा के अहकाम के साथ लिपटे रहना है, उनको छोड़ा हुआ है और अपने काहन बनाए हुए हैं जो सिखाने वाले नहीं हैं, समझाने वाले नहीं हैं, जिनको कोई तालीम की खबर नहीं है, और विद्युतियों के पास जाते हैं। सो बनी इसराइल के 3 रवाबत जो है वो ठीक नहीं थे। पहला, उनका ईमान डामाडोल हो चुका था, और आप ये जानते हैं एलिया के दिनों में भी उन्होंने क्या किया था, तुम्हारा दिल डामाडोल ना हो। एलिया ने इस सारी इसराइल को कह दिया, तुम्हारा दिल डामाडोल ना हो, अगर बाल ही खुदावन है तो तुम उसकी मानो, अगर खुदावन खुदा है तो उसके क्या करो, ताबे हो जाओ। तो वो उस वक्त खामोश रहे। लेकिन जब खुदावन ने आग के साथ जवाब दिया तो सब क्या कहने लगे, हमारा खुदा ही खुदामंद है, हमारा खुदा ही खुदामंद है, बाल झूठा है। सो दुनिया के सारे माबूद झूठे हैं, और जैसा कि लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि दुनिया के माबूद महज बुत हैं, सोना चांदी हैं, इंसान की दस्तकारी हैं, ना बोलते हैं, ना देखते हैं, ना वो छूते हैं। तो गोया जब वो ये कुछ भी नहीं करते तो उनको मानने का क्या फायदा है, जो उनको मौत की तरफ ले जाती हैं।
جو ان کو جو ہے بیماریوں کے اندر لے جاتے ہیں، تو اسرائیلیوں کا یہ حال ہوا، انہوں نے سچے خدا کو چھوڑ دیا، انہوں نے سکھانے والے کہنوں کو جو رد کر دیا۔ تو گویا وہ کس طور پر پھر وہ مارے نہ پھریں، جیسا کہ لکھا ہے، اور پھر بغیر شریعت کے رہے، کلام کو انہوں نے ترک کر دیا، کتاب کو انہوں نے ترک کر دیا، جن کے ساتھ عہد باندھا گیا تھا کہ ہم اس کو مانیں گے، جس پر خون چھڑکا گیا تھا، اس عہد کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا، بغیر شریعت کے رہے۔ تو گویا یہ تین چیزیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لیے امپورٹنٹ تھی، کہ وہ سچے خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، وہ سکھانے والے کہن کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اور پھر کس کے ساتھ؟ شریعت کے ساتھ ان کا دل لگا رہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ داؤد سچے خدا کی پرستش کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ اس نے غلطی کی کہ جب وہ عہد کے صندوق کو لے کر آ رہا تھا تو کیا ہوا؟ اس نے ایک نئی گاڑی کا بندوبست کیا اور عہد کے صندوق کو وہاں پر لے کر آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کو ٹھوکر لگی تو اوزا نے ہاتھ بڑھایا کہ اس عہد کے صندوق کو جو ہے وہ سہارا دے، لیکن خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہوا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اور داؤد ڈرا خدا کے عہد کے صندوق کو گھر میں لانے کے لیے، اور اسے شہر کے باہر جاتی عبید ادوم کے گھر میں جو ہے وہ بھیج دیا۔ پھر اس نے 3 ماہ تک تحقیق و تفتیش کی، شریعت کو جہاں اس نے غور و فکر کے ساتھ پڑھا، اس نے دیکھا، پھر اس نے کہنوں اور لاویوں کو بلایا، اس نے کہا پہلی بار ہم نے غلطی کی تھی، اب ہم اصول کے ساتھ چلیں گے۔ اس نے کہنوں کے ساتھ رجوع کیا جو سکھانے والے کہن تھے، اور جو شریعت کو اس نے دیکھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ وہ عہد کے صندوق کو دوسری بار اپنے گھر 3 ماہ کے بعد لے کر گھر آیا، تو پھر اس نے اپنی شاہی خلعت کو اتار دیا، جھانج پکڑ لی، تپ پکڑ لی، اور ناچنے لگا، گانے لگا، پرستش کرنے لگا کہ زندہ خدا کا عہد کا صندوق، اس کی حضوری میرے شہر میں آئی ہے۔ آمین۔ لہذا سچے خدا کے ساتھ تعلق، سکھانے والے کہن کے ساتھ تعلق، اور پھر یہ شریعت کے ساتھ تعلق ہی جو ہے وہ اسرائیلیوں کو محفوظ کر سکتا ہے، اسرائیلیوں کو بچا سکتا تھا۔ اور اس لیے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا، اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ سچے خدا کو چھوڑ کر کوئی شخص چین میں آ جائے گا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے، اور اگر جو ہے اس کی غلط فہمی بھی ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں سکھانے والے کہن کے ساتھ جو ہے میرا جو ہے بغیر رہ جاؤں گا اور میں بہت کچھ حاصل کر لوں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے جو ہے اس کی نیڈ نہیں ہے، نہ مجھے اسے پڑھنے کی نہ اسے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، تو سمجھ لیجئے اس سے مطلق چین نہیں آئے گا، جیسا کہ اسرائیلیوں کو جو ہے وہ ہوا۔ لکھا ہے جو باہر جاتا تھا اور جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے قوموں کے اوپر دکھ آ جاتے ہیں، ممالک کے اوپر دکھ اذیتیں آ جاتی ہیں جب سچے خدا کو چھوڑ دیا جائے، جب کہنوں کے ساتھ روابط کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے، جب جو ہے کلام مقدس کے ساتھ جو ہے رابطہ توڑ دیا جائے۔ لکھا ہے ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں، قوم قوم کے مقابلہ میں اور شہر شہر کے مقابلہ میں پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچے خدا کو چھوڑ دیا، انہوں نے سکھانے والے کہن کو چھوڑ دیا، انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کو مطلق چین نہیں تھا، اس لیے وہ اذیتوں کا شکار ہو گئے، اور خداوند کی مصیبتیں ان کے اوپر آ پڑی۔ ایسا ہی جیسے
जब मिस्र के ऊपर जब वो 10 आफत आई और जो है वो पूरा मिस्र जो है वो पिस गया, क्योंकि उन्होंने सच्चे खुदा की तहकीर और ताज़ीम की है। लिहाजा इसका मतलब ये है कौमों उम्मतों ममालिक कैसे बच सकते हैं अज़ियतों से, कैसे वो सुकून में और चैन में आ सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, वो क्या है ये बाइबल बयान करेगी। बाइबल इसके बारे में सिखाएगी। और वो क्या सिखाती है कि बड़ी मुद्दत हुई, क्या हुआ, बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल सच्चे खुदा सिखाने वाले काहन और बगैर शरीयत के वो रहे हैं, इसलिए तो वो ममालिक में या अजियत पाते रहे, वो उनको मुतलक क्या नहीं मिलता था। और जब वो अपने दुख में अपने खुदा के तालिब हुए तो खुदा उनको क्या हुआ, मिल गया। खुदा हरगिज़ जो है वो किसी से दूर नहीं है, जो दिल से उसे ढूंढते हैं वो उनको क्या करता है, मिल जाता है। ये दाऊद ने सुलेमान बादशाह को ये बात कही, वो हम खुदा हरगिज़ किसी से दूर नहीं है, जो दिल से उसका तारीफ होता है, उसे ढूंढता है, उसे क्या होता है, उसे खुदा मिल जाता है। आमीन। और सच्चे खुदा के ऊपर किसी का ईमान है तो ये ना समझे कि ये काफ़ी है, बल्कि उसे यह सिखाने वाले काहन के पास जाना होगा, उसे शरीयत की तरफ अपना दिल लगाना होगा और कहना होगा कि मुझे सिखाया जाए। आमीन। और मुझे याद पड़ता है यह हबशी खोजा का, और वो यशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था, खुदा के पाक रूह ने फिलिप्पस को जो है कायल किया और उसको कहा कि फिर जा जो है वो हबशी खोजा यशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा है और तू उसको हदायत कर। और उसने उसको ये बात कही कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उससे कहा अगर कोई हदायत करने वाला ना हो तो मैं क्यों कर समझ सकता हूँ। हदायत करने वालों की तरफ तवज्जो कीजिए, और वो हदायत करने वाले जिनको आता है, जिनको समझ है, जिनको पूरी तालीम की समझ है। ये नहीं कि हर एक सिखा सकता है, सिखाने वाले काहनों के पास जाइए। हालेलुया। तो गोया इसका मतलब ये है कि तीन हमारी जिंदगियों के अंदर रवाबत बहुत ज़रूरी है। हमारा ईमान सच्चे खुदा के ऊपर, हम किस ईमान के साथ चलते हैं ये ज़रूरी है। आमीन। और हमारा ईमान लिविंग फेथ होना चाहिए, ये नहीं ये मिक्स फेथ हो कि दुनिया के साथ भी दिल लगाओ, झूठे मबूदों के साथ भी, और जो है खुदा के साथ भी। खुदा को भी कभी कभी खुश कर लिया और कभी कभी जो है ज़्यादातर जो है वो दुनिया के मबूदों को खुश किया। और कई दफ़ा बहुत सारे मसीहों के जो है वो जो पैर दो कश्तियों के ऊपर हैं कि एक दुनिया के अंदर भी है और खुदा के साथ भी। ये क्यों कर जो है वो किनारे लग सकते हैं और क्यों कर जो है वो बच सकते हैं। बचने की एक ही राह है कि सच्चे खुदा की परस्तिश की जाए और सिखाने वाले काहन की तरफ रजू किया जाए और फिर शरीयत की तरफ अपना दिल लगाना चाहिए। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह पर खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, बल्कि उसकी खुशनुदी क्या है, खुदा की शरीयत में है और रात और दिन उसी पर उसका क्या रहता है, ध्यान रहता है। आमीन। तो गोया आप ये देखिए ये मुबारकबादी है जिसका ध्यान रात दिन जो है वो शरीयत के ऊपर लगा रहता है। तो गोया जो शरीयत के साथ जो है जुड़े रहते हैं, खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर खुदा की बरकत होती है और उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो तस्कीन आती है, उनकी जिंदगियों के अंदर चैन आता है, सुकून आता है। आमीन। जिनके ठीक ये रवाबत है, ये तीन कम्युनिकेशन ठीक है, तो वो शख्स दुनिया का पुरसुकून शख्स है, वेरी सेटिस्फाइड जो है वो शख्स है और उसकी जिंदगी के अंदर अजियत नहीं होगी। आमीन। और वो अजियत में मुब्तला नहीं होगा। और जो ईमान का मुनकर है और जो तालीम से नावाकिफ है, जो खुदा के कलाम से किनारा किया हुआ है, वो शख्स अपनी ज़ात में अज़ियत पाता रहेगा और उसे चैन नहीं मिलेगा
وہ کسی بھی جگہ کے اوپر کیوں نہیں ہو، وہ امریکہ کے اندر ہو یا وہ پاکستان کے اندر ہو، وہ شخص جو ہے اسے مطلق چین نہیں ملے گا اور وہ ہر وقت ہر لمحہ اذیت کے اندر مبتلا رہے گا۔ لہذا ممالک، قومیں، امتیں، زندگیاں، خاندان، کلیسیائیں، ریلیجن کیسے بچ سکتے ہیں، وہ چین میں کیسے آ سکتی ہیں؟ جب سچے خدا کی طرف رجوع کیا جائے گا، جب سکھانے والے کاہنوں کے ساتھ رجوع کیا جائے گا، اور جب شریعت کی طرف توجہ کی جائے گی۔ آمین۔ اور یہی بات آگے چل کر مسیحوں کو بھی یہی باتیں سکھائی گئی ہیں، اور انہوں نے بھی فوراً ایسا ہی کیا۔ جب آپ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ملے گا۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اس روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ 42ویں آیت میں لکھا ہے وہ کیا کرتے تھے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں کیا تھے، وہ مشغول رہے۔ آمین۔ لہذا جب مسیحی بھی ان جو ہے وہ باتوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اگر اسرائیلی ان 3 باتوں کو سکپ کرنے سے ان کو مطلق چین نہیں ملتا تھا اور وہ اذیت پاتے رہتے تھے، تو پوائنٹ ایسا ہی ہے کہ جب مسیحی اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو نہیں رکھتے، جنہوں نے مسیح کے اوپر ایمان رکھا ہے، وہ کیا کریں، وہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ آمین۔ اور پھر رفاقت رکھنے، فیلوشپ کرنے میں اور روٹی توڑنے میں پاک شام میں شریک ہوں اور دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ تو گویا مسیحوں کو یہ 4 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کریں، تعلیم پائیں، وہ رفاقت رکھیں، وہ روٹی توڑیں اور دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ اور جب آپ ابتدائی شخص میں یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں، یہ سارے جہاں روابط ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ ان کی لائف کا ایگزامن کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کسی چیز کے محتاج نہ تھے۔ آمین۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر خدا کا فضل تھا۔ پریز دی لارڈ۔ ان کے اوپر کیا تھا، خدا کا فضل تھا، جو رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، جو رفاقت رکھتے تھے، یعنی فیلوشپ کرتے تھے خدا کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے تھے، اور پھر روٹی توڑتے تھے، یعنی پاک شام میں پاک شراکت میں شریک ہوتے تھے، اور پھر وہ دعا میں مشغول رہتے تھے۔ ان زندگیوں کے اوپر خدا کا فضل ہوتا تھا اور وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے تھے، اور خدا ان کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کر رہا تھا۔ لہٰذا اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ ہم اگر یوں کہیں کہ اگر ہم سچے خدا کے ساتھ جو ہے رسولوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب ہم جو ہے کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہم اپنی زندگیوں کے اندر عجیب طرح کا سکون حاصل کریں گے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر افراتفری محسوس نہیں کریں گے جو آج دنیا کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ کرونا وائرس ختم بھی ہو جائے تو اذیت ان کی زندگیوں میں کبھی ختم نہیں ہوگی جو ان کے اندر ہے۔ اگر یہ وبا ختم بھی ہو جائے تو وہ بھی ان کو مطلق چین نہیں ملے گا جو سچے خدا کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔
जो है तालीम से ना वाकिफ हैं, जो शरीयत को, खुदा के कलाम को, मसीह को अपनी जिंदगी से जो है अलहदा किए हुए हैं, वो फिर भी चैन नहीं पाएंगे और उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत नहीं आएगी। और बाइबल मुकद्दस में जब आप पीछे जो हवाला हमने पढ़ा है, हम दोबारा देखें तो वहां पर मिलता है कि जब बनी इस्राएल खुदा के तालिब हुए तो खुदा उनको मिल गया। आमीन। जब आप 12वीं आयत में पढ़ते हैं, दूसरी तवारीख उसके 15वें बाब उसकी 12वीं आयत में, और वो उस अहद में शामिल हो गए ताकि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों, और जो कोई क्या छोटा क्या बड़ा क्या मर्द क्या औरत खुदावन इस्राएल के खुदा का तालिब ना हो, वो कत्ल किया जाए। उन्होंने बड़ी आवाज से ललकार कर रूहियों और नरसिंगों के साथ खुदावन की हुजूर कसम खाई, और सारा यहूदा उस कसम से बाग बाग हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दिल से कसम खाई थी और कमाल आरज़ू से खुदावन के तालिब हुए थे, और वो उनको मिल गया और वो उनको मिला, और खुदावन ने उनको चारों तरफ अमान बख्शा। आमीन। चारों तरफ अमान बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पूरे दिल के साथ उसके तालिब हुए, गोया इसका मतलब जब उन्होंने खुदा के साथ मेल कर लिया, जब उन्होंने खुदा के खादमों के साथ मेल कर लिया, जब उन्होंने खुदा के कलाम के साथ मेल कर लिया, तो खुदा उनको मिल गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? खुदा ने उनको अमान बख्शी, खुदा ने उनको क्या कर दिया? सलामती बख्शी। मुल्कों में सलामती कैसे आती है, कौमों में सलामती कैसे आती है, कौमों में बरकत कैसे आती है, बाइबल इसकी बाबत बताएगी। ये बादशाहियों के अंदर अमन कैसे आता है, कैसे अफरा तफरी दूर होती है, जब सच्चे खुदा की तरफ आंख लगाई जाए। आमीन। जब उसकी तरफ रजू किया जाए, जब उसकी तरफ तवज्जो की जाए, जब अपनी आंखें उसके ऊपर लगाई जाएं, जब उसके खादमों और रसूलों की तरफ अपनी आंखें लगाई जाएं, जब रफाकत रखी जाए, जब रोटी तोड़ी जाए, जब दुआ में मशगूल हुआ जाए, तब खुदा का फजल उनके ऊपर हो जाता है, खुदा की बरकत उनकी जिंदगियों के ऊपर आ जाती है, और वो किसी चीज के मुहताज नहीं हो पाते। आज दुनिया मुहताजी का शिकार हो रही है, आज दुनिया मुश्किल का शिकार हो रही है, लेकिन याद रखिए जो अपने खुदा के तालिब हैं, जो अपने सिखाने वाले कहनों, अपने खादमों के साथ जुड़े हुए हैं, और जो खुदा के कलाम के साथ प्यार करते हैं, वो मुहताजी की तरफ नहीं जाएंगे, वो बरकत की तरफ जाएंगे, और वो मुतमईन जिंदगी बसर करेंगे, और उनके चीजें मल्टीप्लाई होंगी। क्या आपको इल्म नहीं कि एक जब सारपत की बेवा के पास गया, तो उसने कहा कि वो जा रही, जब वो अपनी लकड़ियाँ चुन रही थी, तो उसने कहा कि मुझे पानी पिला। वो पानी पिलाने के लिए गई, उसने कहा कि वापसी पर एक वो क्या करना, रोटी का टुकड़ा मेरे लिए वो तैयार कर लेना। उसने उसको मुड़कर कहा कि आज के लिए मेरे लिए वो रोटी वो आटा है, ठीक है, और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। एलिया ने कहा वैसा ही कर जैसा मैं कहता हूँ, पहले मेरे लिए बना और फिर आप बाद में किसी और की तरफ के लिए बनाना, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि जब तक ये काल है क्या होगा, ना तेरे मटके के अंदर आटा कम होगा, ना तेरे कुप्पी के अंदर तेल कम होगा। अजीज बहनों भाइयों, जब खुदा के खादमों, खुदा के लोगों, खुदा के नबियों के साथ तल्लुक के अंदर आ जाते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं, फिर हमारी जिंदगियों के अंदर मुहताजी आती है, ना कमी आती है, बल्कि खुदावंद की बरकत, खुदा का फजल हमारी जिंदगियों के ऊपर जारी हो जाता है। करना क्या चाहिए? हम काल और वबा, नंग और तलवार की तरफ तवज्जो ना कीजिए। जो तवज्जो करने की जरूरत है कि सच्चे खुदा की तरफ तवज्जो कीजिए, खुदा के खादमों की तरफ तवज्जो कीजिए, जो आपको सिखाती हैं, और उनसे सीखिए और उनके पास जाइए।
हमें बाइबल मुकद्दस के बारे में बताया जाए, और बाइबल ये खुदा के पूरे मुकाशफा को आपके सामने खोल देगी। और खुदा की बरकत जो है, जो जो आप खुदा के कलाम का तालिब होंगे, खुदा की बरकत, उसकी सलामती जो है हमारी जिंदगी के ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। और ये इस्राएलियों के साथ वादा है कि हर शरीयत की बातों के ऊपर तुम जो है वो उसके ऊपर आमीन करोगे तो खुदा की बरकत जो है तुम पर आओगी। लेकिन अगर तुम इसको कबूल नहीं करोगे तो इसके ऊपर अंदर जो लिखी हुई लानतें हैं वो तुम पर क्या होंगी, नाजिल होंगी। अजीज बहनों भाइयों, खुदा की बरकत उन सब के ऊपर है जो इसको मानेंगे, और खुदा की लानत उन सब के ऊपर है जो इसको तर्क करेंगे और वो अजियतों के अंदर जिंदगी बसर करेंगे। वो ममालिक के अंदर चले जाएं, वो अजियत पाते चले जाएंगे। कौम के मुकाबला में जैसे बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और कौम जो है शहर के मुकाबला में वो पिस जाएंगे। चाहे जो है वो कैसे बड़े बड़े ममालिक, कैसे बड़े बड़े वो शहर क्यों नहीं हो, वो पिसते रहेंगे और कभी भी उन्हें मुतलक चैन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब अपने खुदा के तालिब होंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो कमाल अपने सारे दिल से और कमाल आरज़ू से खुदा उनके तालिब हुए थे, और वो उनको मिला, और खुदा ने उनको चारों तरफ अमान बख्शा है। आमीन। हम अपने घरानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए अमन और चैन चाहते हैं तो क्या करें? कमाल आरज़ू से उसके तालिब हों। प्रेज़ द लॉर्ड। किस आरज़ू से? कमाल आरज़ू से, और पूरे दिल के साथ उसके तालिब हों। और ऐसा ही इब्तदाई कलीसिया ने किया, वो कमाल आरज़ू से खुदा के तालिब हुए और उन्होंने तौबा की, वो रजूल आए और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, वो उस दिन उनके साथ मिल गए, वो तालीम पाने लगे, वो रफाकत रखने लगे, वो रोटी तोड़ने लगे, और वो दुआ में मशगूल हो गए, और फिर किसी चीज़ के मुताज ना हुए, और फिर उनकी खुदा का फजल उनके ऊपर बराबर जारी और सारी रहा। हमारे ऊपर भी ऐसा हो सकता है। आमीन। वो अपने फजल की दौलत, बाइबल मुकद्दस में लिखा बड़ा फजल, बल्कि क्या है, फजल की दौलत हम पर क्या करेगा? निछावर कर देगा, और उसकी दौलत, हमारे खुदा की दौलत कभी खत्म नहीं होने वाली है। हालेलुया। तो आइए अपने खुदा के तालिब हों, आइए उसके तालिब हों, कमाल आरज़ू से, सारे दिल से उसके तालिब हों। प्रेज़ जीसस। अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। ऐ खुदावंद, हम तेरे तालिब होते हैं। ऐ खुदावंद, पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी अक्ल के साथ, और हमारी ये आरज़ू है कि हम तेरे तालिब, क्योंकि तू ही हमारा चारासाज है, तेरे सिवा और कोई माबूद है ही नहीं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु नाम के, जिसके जरिए से निजात हो। इसलिए आए खुदावन, हम तेरे नाम के तालिब हुए हैं। हम तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे कलाम की मुनादी करते हैं, जो तेरे कलाम को सिखाते हैं, समझाते हैं। तेरा शुक्र हो इन खादमों के लिए। हालेलुया। और तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस मोतबर कलाम के लिए तेरी सताइश, तेरी हम्द करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र है इन तमाम सहाइफ के लिए, तेरा शुक्र हर एक सहीफा के लिए, तेरा शुक्र इस इल्हाम के लिए, तेरी सताइश जो हमें तालीम देता है, जो हमें इल्जाम देता है, जो हमारी इस्लाह करता है, जो हमारी रास्तबाजी की तरबियत के लिए फायदा मंद है खुदावंद, ताकि हम कामिल हो जाएं। तेरा शुक्र हो इस मोतबर कलाम के लिए,
तेरी सताइश, तेरी हमद हो। हम तेरे सच्चे कलाम के तालिब होते हैं, हम तुझ सच्चे खुदा के तालिब होते हैं खुदा। हम तेरे सिखाने वाले एकदम नबियों और रसूलों के तालिब होते हैं खुदा, जो हमें तेरी बाबत सिखाते हैं खुदावन। तेरी सताइश हो, तेरी सताइश हो। हमें ये तौफीक दे खुदावन, हम इन राबतों में मजबूत हो जाएं खुदावन। हमारी जिंदगियों में ये जरा सा भी दूर ना हो। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हमारी कलीसिया को ये तौफीक दे खुदावन। ये तालीम पाने, रफा कर रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल हो। हर एक मसीही को ये तौफीक दे खुदावन, जिन्होंने तेरा इकरार किया है खुदावन। हालेलुया। और जिन्होंने तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं लिया, वो भी एकदम तौबा करें और बपतिस्मा लें और तुझ में शामिल हो जाए खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरी सताइश, तेरी हमद हो। मैं तेरी बरकत लोगों के लिए चाहता हूँ, तेरी एकदम खुदा सलामती चाहता हूँ। जो तेरे तालिब हुए हैं खुदावन, यकीनन तेरा इत्मीनान तेरे लोगों को छूने लगा है। जो एकदम और कमाल और सू से तेरी तरफ रजू लाए हैं, यकीनन तूने उनको छुआ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी सताइश करता हूँ। हम कभी भी तुझसे जुदा ना हो, क्योंकि तू खुद फरमाता है खुदावन, तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, तेरा शुक्र। कलीसिया बरकत पाए खुदा। We praise you, we praise you। हम आखिर में पास्टर कैथरीन के साथ खुदा उनके कलाम के लिए, खुदा आज की बरकत के लिए, और हम इन दरखास्तों को भी जो पेश की गई हैं उनके लिए दुआ करेंगे। We praise you Lord, hallelujah। आए हम दुआ करें, आज के कलाम का शुक्र अदा करें कि खुदावंद खुदा ने हमें खूबसूरत कलाम दिया है। हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद, तुझे सजदा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। Yes Lord। क्योंकि ए खुदावंद खुदा, तूने अपनी तालीम हमें बख्शी है। Yes Lord। हाँ, दुनिया की तालीम हमें कुछ फायदा नहीं दे सकती। We worship you Jesus Christ। दुनिया का इल्म हमारे लिए कुछ हकीकत नहीं रखता। हमारे लिए आसमानी इल्म है जो हमें बढ़ाता है, फायदामंद है। हमारी वो रूह की तरक्की के लिए है, हमें वो तंदुरुस्त रखता है, हमेशा की जिंदगी बख्शता है। इसलिए खुदावंद खुदा, आज के कलाम के मुआफिक जितनों ने खुदावंद इस कलाम को सुना है, वह उसी के मुताबिक खुदावंद खुदा चलने की उन्हें तौफीक दे। सच्चे खुदा की तरफ, सच्चे काहिन की तरफ और शरीयत की तरफ और दुआओं की तरफ हमेशा उनका ध्यान लगा रहे। ए खुदावंद खुदा, तू ही सच्चा खुदा है जिसने अपने बेटे के खून से हमें नजात दी है, और तू ही सच्चा खुदावंद खुदा काहिन है, सरदार काहिन है, जिसने अपना ही खून देकर बर्रा ज़बा किया हुआ बर्रा अपना ही खून लेकर हमारी खातिर खुदावंद तूने कुर्बानी दी, नजर दे दिया। ए खुदावंद खुदा,
तूने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को यही तालीम दी और आज वो सच्चे काहिन हैं, आज वो सच्चे उस्ताद हैं। तेरे सच्चे उस्ताद हमेशा खुदावंद खुदा तेरी कलीसियाओं को अच्छा सबक देंगे, सच्चाई की तरफ राग़ब करेंगे, उसी राह और हक और ज़िंदगी की तरफ जो तेरी है। तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा, कलीसियाओं को शरीयत के मुताबिक, कलाम के मुताबिक चलना सिखा, क्योंकि एक ही राह है जो सीधी राह है और वो मसीह है। ए खुदावंद तेरा शुक्र हो, कलाम के मुताबिक ही हमें हर वक्त दुआओं में लगे रहना है, दुआएं करते रहें, मिलकर दुआएं करें, यूनिटी में दुआएं करें, ख़ानदान के साथ मिलकर दुआएं करें, चर्च में मिलकर दुआ करें, शख्सी दुआएं करें। खुदावंद खुदा इनसे तू खुश होता है। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ़ हो। जब खुदावंद खुदा तेरे शागिर्द तेरी तरफ आए, तेरे शागिर्द बन गए, तो सब ने खुदावंद खुदा तुझसे ही सब कुछ सीखा। दुआ करना, रोटी तोड़ना, कलाम सुनना, कलाम में लगे रहना। खुदावंद खुदा इसी तरह उन शागिर्दों की तरह हम बन जाएं तो तेरे शागिर्द कहलाएंगे। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ़ हो। मेरी दुआ है कलीसिया का एक एक फ़र्द, ए खुदावंद खुदा, आज इस कलाम के वसीला से एक अच्छा शागिर्द बन जाए, सुनने वाले कान बख्श दे, नरम ज़मीन वाला दिल बना दे, ताकि खुदावंद तेरे शागिर्द बन जाएं और वो इज़्ज़त और दौलत और हिकमत हर एक को अचीव कर सकें। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ़ हो। सब कुछ मांग लिया है तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस अपनी कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होती है। God bless you.